After phase 5, now that 428 seats, which make up 79% of the Lok Sabha's total strength, have polled, it seems that the strategy of INDIA has shifted slightly. Because now they have supplemented their battle readiness with a fair sprinkling of bluster. So every single big leader in the alliance today predicted the doom of BJP, but this time they were armed with figures. And these figures ranged from 140 to 240. But of one thing they were absolutely clear, that this time the BJP is set to lose, and set to lose badly. They will not cross the halfway mark, leave alone touch 400 or be anywhere close. Interestingly though, that even in predicting just how gloomy a future the BJP is looking at, there wasn't any unanimity. So while Mamata Banerjee said that the BJP would fall short of 200, Tejaswi Yadav was more charitable. He said the ruling alliance would be somewhere at 240. Akhilesh Yadav, though, was the most strict. He said that the last phase of polling in Uttar Pradesh, which happens in Purvanchal, would spell a wipeout for the BJP, and this time the public of India would make the Bharatiya Janata Party beg for even 140 seats. जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान हुआ शुरू हुआ है, आखिरी तक जब पूर्वांचल का चुनाव खत्म होगा और 7वें चरण खत्म होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। वही प्रधानमंत्री मोदी जी का देखिए 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि 543 400 पार के मतलब 143 सीटें और जनता इन्हें 140 के लिए तरसाएगी। ये प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ता है। ওরা বড় জোর 190 থেকে 195 আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে, 3-4টে পার্টি বাদ দিয়ে এখনো। But Arvind Kejriwal took this a step further to say that not only is INDI poised to make a stable government with 300 plus, but that the BJP will be completely wiped out on the 4th of June. The Prime Minister will be replaced with Amit Shah, and Yogi Adityanath will be sidelined in his own party. In fact, Mr. Kejriwal also said that it's the arrogance of being Narendra Modi's successor that led Amit Shah to brand Indian voters as Pakistanis. जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफ़ी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फ़ायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है, जो लोग वहां मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे, और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं?
But at the end of it all, the Prime Minister spoke for his party. He had his own opinion poll to offer, reiterating not only the 400 par slogan for the BJP, but also predicted that June 4 this time would bring the kind of loss for the opposition that was unprecedented, the kind of loss that the world would not have seen before. पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। हर चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूं, जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। 10 साल के मेरे काम का हिसाब देने जा रहा हूं और जहां भी गया हूं एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, एक ही मंत्र सुनाई दे रहा है, एक ही गूंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार 4 जून। Okay, so that's our simple question. Is this now the strategy of using mind games against each other? If the BJP went with a 400 par slogan, now the opposition has decided to completely browbeat them, saying 140 bhi par nahi hoga. Is this battle strategy? Is this bluster? And more importantly, like Mallikarjun Kharge said yesterday, there's a palpable undercurrent against the BJP, which nobody is being able to understand. Is that really happening? Let's take this across to the guest joining us now, because today we are going to do an interesting experiment. We are simply going to analyze how things stand. Shehzad Poonawalla, national spokesperson of the BJP, Harshvardhan Tripathi, senior journalist, Sameer Chowgankar, senior journalist and political analyst, Tehseen Poonawalla will join me in just a bit. But I'll start with the journalists first. Harshvardhan ji, यहाँ पर 4 आंकड़े दिए गए हैं, 140, 240, 200 या फिर करीब करीब 150 का जो दिया गया है। आपको क्या लगता है, बीजेपी क्या इनमें से किसी के भी पास है? ये अलग अलग ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं 140। देखिए पद्मजा जी, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मैं दूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे ध्यान में है, मैं तो आपके साथ लगातार डिबेट में रहा। देश के बड़े हिस्से में आप भी घूम आई, दक्षिण घूम आई, पूरब घूम आई, पश्चिम घूम आई, तो आपको क्या इनमें से कोई भी आंकड़ा जरा सा भी सच्चाई के नजदीक दिखता है? और मैं सचमुच, देखिए होता क्या है, राजनीति में आप जब कुछ बोल रहे होते हैं ना, तो एक तो आपका अपना मन से आ रहा हो, कन्विक्शन है कि नहीं भाई हम ये करेंगे, और जब कोई पार्टी बहुत शुरुआती दौर में होती है, छोटी होती है,
तो उसको बड़े बोल बोलने देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे कार्यकर्ता आएंगे 2 सीट वाली, 4 सीट वाली, 10 सीट वाली। लेकिन जब आप ये दावा कर रहे हैं कि आप जो नई लोकसभा बनेगी उसमें आप बड़ी भूमिका में आने जा रहे हैं, और उसमें एक पार्टी जो लगातार ब्रूट मेजॉरिटी के साथ आ रही, जबरदस्त बहुमत के साथ आ रही, तो आपको कम से कम आंकड़े देते वक्त उसके साथ कुछ सपोर्टिंग फैक्ट्स रखने चाहिए। कभी आप 140 बोल देंगे, कभी 150 बोल देंगे, कभी 180 बोल देंगे, कभी कोई 220-30 बोल देगा, और कभी जो अखिलेश यादव जी हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि उनका कुछ अलग ही मामला है। अखिलेश जी ने लखनऊ वाली प्रेस वार्ता में कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी 400 पार बोल रहे हैं ना, तो 400 के बाद यानी 543 में से 400 घटा दीजिए तो वो हो गई 400 पार। अब ये वाला गणित तो हमने कभी जीवन में सुना ही नहीं, मतलब कोई बहुत जीनियस हो गणित में तो इस तरह से गणित करता हो, मैं नहीं जानता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल ये लोग पब्लिक की भावनाओं, पब्लिक के साथ, अपने कार्यकर्ता के साथ कोई इनका अटैचमेंट नहीं है, ये एक नंबर उछाल रहे हैं, जिसको कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल जो माइंड गेम चलता है उसमें, चलो मोदी जी ने 400 पार किया तो हम भी कुछ बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर होता कि अगर ये कुछ आधार के साथ बताते कि कांग्रेस पार्टी आज इतनी सीटों पर खड़ी है, समाजवादी पार्टी आज इतनी सीटों पर खड़ी है, डीएमके इतनी सीटों पर खड़ी है, एनसीपी शरद चंद्र पवार इतनी सीटों पर खड़े हैं, ममता जी इतनी सीटें जीत जाएंगी, आम आदमी पार्टी इतनी सीटें जीत, इनमें से कोई अपनी एक भी सीट को लेकर आश्वस्त नहीं है। और जब राहुल गांधी रायबरेली को लेकर आश्वस्त नहीं है, हालांकि मेरा मानना है कि वहां उनको बढ़त है, लेकिन जब वहां आश्वस्त नहीं है तो इनकी सीटों के नंबर पर जनता कैसे विश्वास करेगी, ये सवाल है। Okay, before I get Tehseen Poonawalla to respond, I want to bring in Shehzad. Mind games they are playing, but is it working? It seems that they are trying to make the BJP past, dhwast and parast. Mentally एकदम आपको ब्रेक डाउन करा देंगे। शहजाद पूनावाला, ऐसा है कि मेंटल ब्रेकडाउन करने से पहले उनके मेंटल स्टेट को थोड़ा सा हमको परखना चाहिए। अखिलेश यादव जी, अभी हर्षवर्धन जी ने बात रखी, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि आजकल ऐसा इन्फ्लेशन है कि 500 mg की पैरासीटामोल से अभी बीमारी दूर नहीं हो रही है, 650 mg लेनी पड़ेगी, तो इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। ये वही अखिलेश यादव जी है, हर्षवर्धन जी, समीर जी, दोनों जिनको मैं बहुत मानता हूँ, साथ में डिबेट में मेरा सौभाग्य है, उनसे पूछे। अखिलेश जी ने कहा था कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीट मिलेगी, 400 पार सपा होने वाली है। जब 400 पार उन्होंने अपने लिए कहा तो भारतीय जनता पार्टी 250 पार हो गई, तो इस बार उन्होंने 79 बोला है लोकसभा में, तो क्या स्थिति होगी आप नाप लीजिए। राहुल गांधी का बयान है, तहसीन पूनावाला बैठे हैं, कि वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कॉन्फिडेंट थे कि वो जीतने वाले हैं। अब वही चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और उसमें क्या हुआ। देखिए, माइंड गेम्स का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनाव से 400 प्लस सीटें लड़ रही थी। एक समय पर 400 प्लस सीटें आती थी, अब 400 प्लस सीटें जब 14 और 19 में लड़ी, तब जाकर उनको 44 और 52 सीटें मिली। आज कांग्रेस कितनी सीटें लड़ रही है? 328 या 330, तो आप आंकड़ा जोड़ लीजिए। दूसरी बात, अब थोड़ा सा लॉजिकली चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 224 सीटों में 50% से ज्यादा वोट शेयर मिला, और ज्यादातर सीटें हम लोग 60, 70,000, 1 लाख के मार्जिन से जीते। उन सीटों पे कोई हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, पर और हमारी सीटें ईस्ट में और साउथ में बढ़ रही है, ये सभी का आकलन है। हमारी कोई ऐसी सीटें घट रही है, वो भी ऐसा कोई आकलन नहीं कर रहा। कह रहे तो ज्यादा से ज्यादा कह रहे हैं हरियाणा में 1 सीट पे टफ फाइट है, राजस्थान में 1-2 सीटों पे टफ फाइट है, बस यही कह रहे हैं। तो कॉमन सेंस से भी अगर देखा जाए, और कॉमन सेंस के बाद प्रैक्टिकलिटी देखिए। अब ईवीएम पर सवाल कौन खड़े कर रहा है? विपक्ष के लोग। कौन अमेठी से घबरा रहा है लड़ने से? विपक्ष के लोग। कौन है वोट जिहाद पे आ गया? विपक्ष के लोग। कौन सीट चेंज कर रहा है 7-8 सीटें घोषित करने के बाद? विपक्ष के लोग। तो मुझे बता दीजिए कि कॉन्फिडेंस कहां पर है, और कौन केवल और केवल बोलने के लिए बोल रहा है। एक तरफ मिशन और विजन है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स ऑफ कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन ऐसा है, आखिरी बात कहता हूं, कि अधीर रंजन चौधरी बनाम खड़गे जी चल रहा है ममता को लेकर। अब ऐसी जब स्थिति है, वरना तहसीन पूनावाला बता दे कि अगर उनका इतना ही श्योरिटी है, तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ये क्यों नहीं कहा कि हमारी तरफ से ये होंगे प्रधानमंत्री पद के दावेदार। वो कहते हैं तो ममता दीदी कहती है कि मैं आउटसाइड सपोर्ट कर दूंगी। रायबरेली में जैसे ही कहा तो ममता दीदी ने कहा आउटसाइड सपोर्ट हो जाएगा।
तो मुझे लगता है इसी से पता चलता है कि कितने कॉन्फिडेंस में है और कितना इनका, मुझे लगता है केवल हवा हवाई बातें हैं। Okay. Tehseen Poonawalla, BJP is absolutely confident. By the way, you can't say anymore that the Prime Minister is scared of saying 400 par. आर तो उन्होंने 400 पार भी बोला. He went one step further also. He said not only will we be 400 par, they will be finished in a way that nobody would have foreseen. So you are happy now? PM is back to saying 400 par. Good evening, Padmaja. Thank you so much for having me on the show. The Honorable Prime Minister can say whatever he wants, and so can the BJP representative on your show talk about confusion. The fact is the BJP is under perspiration. And the fact is that the BJP is not crossing 160 seats. So, and the Congress is going to end up at 190 seats. Yes, it's true. We got Chhattisgarh and Rajasthan and Madhya Pradesh wrong. Because everybody, including Rahul Gandhi, was following the Times Now ETG survey. They got it wrong. So everyone got it wrong. That happens in politics. That's not the issue. What is the issue today? Today you have a gentleman who promised that he would be third-time Prime Minister with whatever numbers of 400, crossing 400 seats. He had to come down to Musalman, Mangal Sutra, Machli, Bhaise to try and win an election. He has nothing to talk about what he did in 10 years, what he intends to do in 5 years. On the other hand, you have Congress and SP and the other alliance partners who are absolutely united in the fact that India needs to be a prosperous country, a democratic and a developed country. Of course, the Prime Ministerial candidate is not declared. Of course, it's not declared. Because whichever party gets the highest number of MPs will select, and the Congress should have the highest number of MPs, and they will decide who the Prime Minister is. So logic says it will be a Congress MP. One last thing. Rahul Gandhi contested from Rai Bareli and from Wayanad. He contested from North India and South India. And I concede the Honorable Prime Minister, tallest leader in the country. Despite that, the Prime Minister does not have the guts to contest from South India. Rahul Gandhi is contesting 2 seats. Why did he not contest in Amethi? Let me explain to your viewers. I'll just take 30 seconds more. Amethi is the easiest seat to win because of the anti-incumbency against the current MP. I saw you, Padmaja, you had gone there. Excellent coverage. But people were scared to say that they are not voting BJP. Rai Bareli is a tougher seat to win because Sonia Ji has left the seat. So Rahul Gandhi actually drank poison and is fighting Rai Bareli. Amethi would have won by 3 lakhs. But even in Amethi, Kishori Lal Sharma is winning by over 70,000 votes. Okay, but you still haven't answered my question. Before you respond, Shehzad Poonawalla, Congress said Mr. Modi is scared. कॉन्फिडेंस उनका खत्म हो गया. अब वो 400 पार नहीं बोलेंगे. आके बोल दिया उन्होंने आज 400 पार. अब नहीं पद्मजा जी, आप जिस अंदाज में बोल रही हैं कुछ और याद दिला रहा है. हाँ, एक बोला था, एक महिला प्रवक्ता है, उन्होंने कहा था कि ये 400 पार अब आगे नहीं बोला जाएगा. बोल दिया. अब डज इट मीन ही इज कॉन्फिडेंट? केवल वो अभी उनके पेट बीमार है तो तहसीन पूनावाला, go on. I'm sorry. Answer that. Oh, sorry. Oh, it's for me. I thought it was... Okay. No, the Prime Minister can say anything. Why 400? Give him 542 seats. उनके बोलने से क्या होता है? Fact is, this election is people of India versus the Prime Minister. He has not been able to deliver. He knows that he's been caught out. Suddenly the confidence in 400. So this is all posturing for the media. He knows that on post 4th June, Narendra Modi ji is taking oath as leader of opposition. He knows it. I was you asking know it, you only Padmaja, because it was said that 400 par is backfiring, so the BJP is now scared of saying it because there is fear It was that our constitution will be psychological amended, warfare and he etc., reacted to etc. it. Quick rebuttal, It was Shehzad our Poonawalla, then I want to bring in psychological Sameer warfare, he got Chaugankar. scared of it. Quick rebuttal, Shehzad Poonawalla. Padmaja, first of all, the Prime Minister is not the one who said Musalman, Musalman. It is the Congress party which has done Musalman, Musalman. Lalu Prasad Yadav said पूरा आरक्षण दे देंगे. राहुल गांधी का तो अब वीडियो सामने आ गया मुस्लिम आरक्षण पर. संविधान बदलने की बात ये लोग कर रहे थे, तो एक बार उनसे बोल दीजिए कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे मुस्लिम आरक्षण देकर, या हम लोग SC ST OBC का कोटा काट कर नहीं देंगे. परंतु दूसरी बात करता हूं, अभी तहसीन पूनावाला ने कहा, जो कांग्रेस भी नहीं कह पा रही है, कि कांग्रेस को 190 और बीजेपी को 160 मिलेंगे. पद्मजा जी, मैं आपसे 10 सेकंड लेना चाहता हूं. हर्षवर्धन जी और समीर जी दोनों यहां बैठे हैं. यदि 190 कांग्रेस को नहीं मिलती है और 160 बीजेपी को नहीं मिलती है, तहसीन पूनावाला एक बार, क्योंकि उन्होंने ये क्लेम किया है तो जरूर उनको कॉन्फिडेंस होगा अपने क्लेम पर, तहसीन एक बार बोल दे कि इसके बाद वो राजनीतिक विश्लेषण छोड़ देंगे. तहसीन, पर्सनल नहीं होना है. नहीं, पर्सनल नहीं है. एक सेकंड पद्मजा जी, 5 सेकंड पद्मजा जी, 5 सेकंड. ये पर्सनल नहीं, ये एक सेकंड मैं एक्सप्लेन कर दूं. आप मुझ पर पर्सनल होने का आरोप मत लगाइए भाई साहब. आप मेरे भतीजे के पिता हो, तो मैं पर्सनल आपसे नहीं होऊंगा.
मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं तहसीन भाई कि आपने क्योंकि कहा है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, आपने क्योंकि कहा है कि 190 कांग्रेस एंड 160 बीजेपी, इसको तो एक बार टाइम्स नाउ के जो आपके प्रोड्यूसर है पद्मजा जी, इसको रिकॉर्ड कर लो इस मोमेंट को, और हमारे पास 2 गवाह और आप भी हैं। मैं कह रहा हूं तहसीन पूनावाला, एक बार अपनी बात पर डंके की चोट से बोलिए ना कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं राजनीतिक विश्लेषण छोड़ दूंगा। एक बार बोल दीजिए ना। ओके, गो ऑन तहसीन। ये सवाल क्या शहजाद ने माननीय अमित शाह जी से 2017 में गुजरात में पूछा जब कह रहे थे 150 पार, या अमित शाह जी से जब कह रहे थे वेस्ट बंगाल में 200 पार? देखिए, हम राजनीतिक विश्लेषक है, मैं आकलन कर रहा हूं जो पब्लिक का मूड है। अब बाकी सब भगवान और ईवीएम के ऊपर है। ओके, भगवान और ईवीएम के ऊपर है। ऑल राइट, लेट मी ब्रिंग इन समीर चौगांकर। आई वांट टू प्ले आउट फॉर यू व्हाट अखिलेश यादव सेड in Uttar Pradesh while he was with Rahul Gandhi. Now, because they're also making predictions, where is this breakup coming from? If today Akhilesh Yadav says that they will not cross 140, that confidence is coming from the fact that he thinks BJP will not win more than 1 seat in UP. Let's listen to what he said and then I'll take your reaction. सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी जो 80 सीटें ले रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। समीर जी, क्या आपको लगता है कि क्यूटो को छोड़ करके सारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीतने वाली है उत्तर प्रदेश में? For the uninitiated, by the way, Akhilesh Yadav calls Varanasi क्यूटो। पद्मा जी, आपने एक Yes, go on. बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये सुनवा दिया। अगर आप ये नहीं सुनवाते तब भी मैं शुरुआत अखिलेश यादव की यहीं से करने वाला था कि अखिलेश यादव तो देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2 बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। एक प्रधानमंत्री के परिवार से आता है, एक मुख्यमंत्री के परिवार से आता है, और खुद अखिलेश यादव तो खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे। हालांकि ये सौभाग्य राहुल गांधी को भी नहीं मिला है। अखिलेश यादव तो जमीनी स्तर को समझते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी ऐसी रही है। 2017 का वो उत्तर प्रदेश का चुनाव की जमीनी सच्चाई नहीं समझ पाए, वो 2022 के विधानसभा चुनाव की सच्चाई नहीं समझ पाए, वो 2014 और 2019 लोकसभा की सच्चाई नहीं समझ पाए, और आज वो 2024 में क्लेम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतने वाली है। अखिलेश यादव ये कहने की स्थिति में नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव क्या जो 5 सीटें मायावती के सहयोग से पिछले साल उन्होंने 2019 में जीती थी पिछले लोकसभा चुनाव में, वो क्या उसे बरकरार रख पाएंगे? अखिलेश यादव अपनी सीट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। अखिलेश यादव अपनी पत्नी की डिंपल यादव की सीट के लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। अखिलेश यादव अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव दूसरे भतीजे की सीट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट जीतेगी। ये बताता है कि वो जमीनी सच्चाई से कितने अवगत है। और राहुल गांधी तो हर दूसरे दिन आंकड़ा बदल देते हैं, कभी 180 सीट कहते हैं, कभी 140 सीट कहते हैं, कभी कहते हैं 100 के ऊपर नहीं आ पाएंगे। प्रधानमंत्री तो जिक्र कर चुके हैं कि कांग्रेस के शहजादे तो कुछ दिन बाद कहेंगे कि वो 100 के पास नहीं पहुंच पाएंगे। आज मैं आपको बताता हूं पद्मजा जी, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि 4 जून को 400 पार। विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही कि 4 जून को हम जब रिजल्ट आएगा तो 2 बार से जब हमें विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें नहीं मिली है, तो इस बार हम इतनी सीटें लेके आएंगे कि हमारा विपक्ष का नेता बनेगा। आज कांग्रेस की यह स्थिति है कि कांग्रेस 40 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है। नहीं, बट अरविंद केजरीवाल ने आज बोला, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि 300 सीटें ला करके हम एक स्टेबल सरकार बनाने वाले हैं। सो ही हैज गिवन दैट फिगर कि हम 300 सीटें एक साथ मिलकर के लाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने बोला है आज। देखिए पद्मजा जी, जिस अरविंद केजरीवाल जिस पार्टी से आते हैं, उसका पार्टी का तो अभी लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। जो एक जालंधर से सांसद था वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए हैं पंजाब के अंदर, ये जानते हुए कि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का 92 सीट जीती हुई थी। उसके बाद सांसद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यह पंजाब की जमीनी स्तर बता रहा है। जिस पार्टी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, अखिलेश यादव थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहे हैं। बट मैं कुछ एक यूट्यूब वीडियोस भी देख रही थी, बहुत सारे जो यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बोला है कि 55 के पार जाना बहुत मुश्किल है। माय क्वेश्चन इज दैट इज देयर रियली एन अंडरकरेंट दैट एवरीवन सिटिंग हियर इज मिसिंग? कुछ लोग बोल रहे हैं 55, कुछ कह रहे हैं 20 तक भी हो सकता है। योगेंद्र यादव आई थिंक उन्होंने शायद कहा था कि बीजेपी शायद 20 में ही सिमट जाएगी। पद्मजा, देखिए
पद्मजा, योगेंद्र जी, उनके बारे में मैं एक बात कहता हूं कि उनसे किसी भी सामान्य व्यक्ति को थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो राजनीतिक शुगर डायबिटीज दे देते हैं। वो ज्यादा जिसके पास रहे इतना मीठा मीठा बोलते हैं ना कि उसको पॉलिटिकल डायबिटीज हो जाए, और पॉलिटिकल डायबिटीज हो जाएगी तो क्या होगा, वो अखिलेश यादव जैसा हो जाएगा, वो राहुल गांधी जैसा हो जाएगा। यानी जिनको शारीरिक तौर पर, जैसे आप कहते हैं ना, डायबिटीज कमजोर करती है, वैसे ये पॉलिटिकल डायबिटीज है जो मीठा मीठा सुनाती है, कड़वा नहीं सुनाती है, और उसके बाद पॉलिटिकली आप कमजोर होते चले जाते हैं। इन्हीं योगेंद्र यादव ने अखिलेश यादव के लिए कहा था कि हमने पिच तैयार की थी इतनी अच्छी, अब अखिलेश उस पर खेल ही नहीं पाए तो हम क्या करें। तो ये विधानसभा चुनाव में थे। अब मूल बात यह कि क्या कोई करंट या अंडर करंट जैसी चीज है। देखिए, ये इससे जिसको कहते हैं ना कि एक शब्द है जिसको हम जब कुछ नहीं समझ पाते हैं तो कहते हैं अंडर करंट था। अंडर करंट नहीं होता है भैया, साफ साफ दिखता है आपको कि क्या होने वाला है। जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो भी दिख रहा था, 5 सीटों का अंतर था कांग्रेस और भाजपा के बीच में, तो चुनाव उसी तरह से चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जब उसके बाद के चुनाव की आप बात करते हैं, बड़ी क्लैरिटी से दिख रहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी 2009 में हार रहे हैं, बार बार कहने के बावजूद हार रहे हैं। 60,000 रुपए का जो किसान की कर्ज माफी की थी उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को यूपीए को एज थी। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से 300 प्लस जा रही, एनडीए 400 के नजदीक जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 70 सीटों के आसपास पर खड़ा है, वो कहीं भी जा सकता है। क्योंकि जब आप सीट बाय सीट एनालिसिस करते हैं, सामाजिक समीकरण, सोशल इक्वेशन की बात करते हैं, तो आपको ये सारी बातें समझ में आती। वरना कोई भी एक आंकड़ा लीजिए और कहिए कि बस यही होने वाला है, और हम चारों लोग उसी पर कहेंगे हाँ हाँ ये हो तो सकता है। समीर जी कुछ और बोल दे, तहसीन कुछ और बोल दे, शहजाद कुछ और बोल दे। Okay, Shehzad Poonawalla, Prashant Kishore yesterday in an interview said that from what I have learned of working with the Prime Minister, when he gets very aggressive means that the BJP is in trouble. Now, going by what he said today, it was super aggressive. He said कि ये लोग तो पूरी दुनिया देखेगी, आखिरी प्रहार होगा. So does aggression then translate into nervousness, going by Prashant Kishore's analysis? No, if you're quoting Prashant Kishore's interview with the said journalist, then in that case, he has in fact gone ahead and said that he sees no change, or he sees nothing that has shifted from 2019 to now. In fact, let me tell you what he gave as an example, and I agree with it anecdotally. He said that in 2019, the BJP got 37% votes, which means 3 or 4 people out of 10 people supported the BJP. So, on the ground, there might anyways be number of people who might say, we don't want BJP. Now the studio armchair critics have now got down on the ground, and where 5 and 6 people are saying out of 10 that they want BJP, they will still anecdotally get 2 or 3 people who say don't want BJP, and they are thinking that this is undercurrent. This is exactly what he has quoted in the full context, and therefore he has said that by his assessment, the BJP is only growing in states like the eastern states and the southern states. So there is no question of BJP reducing any seats. It will only go further. How further it will go, that is a guess of anybody else. But let me make 2 more points. The same Yogendra Yadav who you have quoted, in 2019 he said, write it, take it in writing, the BJP is not coming to power. And secondly, I'll tell you why these people are now all saying this. The reason why they are saying BJP 140, BJP 160, BJP 200, BJP 220, India is 300 is because on the day of 4th June, when you will see 400 par for NDA, then they will say undercurrent tha, EVM gadbad kar diya. Okay. This is all EVM gadbad ho gaya hai. So this is for the post-poll alibi that they are setting the ground. Tehseen Poonawalla. Padmaja, 2 things. I also saw the interview of Prashant Kishore with the said journalist, and yes, I do agree with the assessment both he and the BJP spokesperson made on 4 and 6. Yes, there is a united 4 votes for Prime Minister Modi. The 6 gets divided in a first past the post system. But the undercurrent, I don't think it's an undercurrent. I think it's a current, it's a shock. It's a 440 watts current for the BJP. The 6 other votes have actually increased to 7 or 8, and it's united for the Congress and the India Alliance. And any political party that is not supporting them is in for a bad time. So what you're going to see is in southern India, for example, you're going to see Chandrababu Naidu and Jagan being wiped out. You're going to see the Congress making gains in Andhra. What you're going to see is in eastern India, Odisha, for example,
both Biju Patnaik, the Biju Janata Dal and the BJP get completely routed and the Congress make gains because Congress has occupied an opposition sport. With the only exception of West Bengal, everywhere else the vote is united for the India Alliance. So much so that there was pressure from certain groups on those who are not uniting with the India Alliance. Why are you not going with the India Alliance? So I am extremely clear that there is a united vote for the Congress and the India Alliance. And that vote is translating not to 6 and 4. Prashant Kishore and the BJP spokesperson is right, but it's actually now gone to 7 and 3. He's right that the Prime Minister still individually is the tallest leader in the country. No doubt about it. But something fundamentally has changed. I also agree with Harshvardhan ji on the advice he gave about Duggal Saab. People should stay away from Duggal Saabs. I do agree on that. All right. I'm just going to give the final. Okay, Shehzad Poonawalla. You know, for BJP, as per the figures given by Tehseen, that Congress should win 190 seats. That means 190 out of 320 that Congress is contesting, it is almost strike rate of 60%, 50% plus. Can Tehseen tell me one state where the Congress is going to have strike rate of 50%? One state. Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh. Maharashtra. How many seats is Congress? No. How many seats is Congress contesting? Maharashtra, Rajasthan. How many seats is Congress? Doesn't matter. The India Alliance strike rate will be more than. No, India Alliance strike rate. First BJP is going below 23 in Maharashtra. No, India Alliance strike rate. No. 1 second. Just hold on. In Maharashtra, the BJP is 23. It's going below 23 in Maharashtra. You are having losses. In Rajasthan, you have swept all the seats. You're losing seats in Rajasthan. The game is only for the Congress. How many seats are we losing in Rajasthan? Please understand that. That's where your math is wrong. It doesn't matter. Sir, how many seats? In Rajasthan, you're not crossing 10. You're losing 16 seats. This analysis should only convince people that if BJP is not crossing 10 as per Tehseen, you please call him on 4th June with me and with Harshvardhan ji and But definitely that will happen. 4th June, Tehseen, I remember we did this in Uttar Pradesh elections also, and we are going to do this again on the 4th of June also. Final word, Sameer ji. Nation का poll purely feedback. नॉट पॉलिटिशियंस ने क्या बोला, शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला ने क्या बोला, आपके फीडबैक के हिसाब से इंडिया में कितनी सीट किसको मिल रही हैं और यूपी में कितनी सीट किसको मिल रही हैं, आपका क्या फीडबैक है? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है पद्मजा जी, मुझे लगता है 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 75 सीट्स जीतने जा रही है। कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है रायबरेली, और जहां तक अखिलेश का सवाल है, अखिलेश सिर्फ 2 सीट समाजवादी पार्टी को मिलेगी, बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 2019 में जो 303 सीटें मिली थी उससे 15 सीटें ज्यादा मुझे लगता है 2024 में भारतीय जनता पार्टी 315 से लेकर 335 के बीच में अपने दम पर सीटें लेने की स्थिति के अंदर है। जहां तक कांग्रेस की बात है, आज कांग्रेस को देखिए 2019 के अंदर केरल में 20 में से 15 सीटें मिली थी। क्या कांग्रेस वो केरल में प्रदर्शन करने वाली है? पंजाब में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। क्या कांग्रेस इस बार 8 सीटें जीतने की स्थिति में है? पिछली बार तमिलनाडु में कांग्रेस को 8 सीट मिली थी। क्या तमिलनाडु में कांग्रेस ऐसा प्रदर्शन करने की स्थिति में? मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के युवराज की जितनी उम्र है उससे कम सीटें मिलेगी, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है इस बार कि वो पिछली बार के 52 सीट्स के आसपास पहुंच सके। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबली 315 सीटें क्रॉस कर रही है। ओके, हर्षवर्धन जी, नेशनली और यूपी में किसको कितनी सीटें? देखिए, मुझे कोई भ्रम नहीं है और मैं बार बार कहता आ रहा हूं, फिर से दोहराता हूं, नरेंद्र मोदी के पक्ष में देश में एक साइलेंट वेव चल रही, शांत लहर चल रही है। जब लंबे समय तक कोई एक जैसी लहर चलती है तो हम उस लहर का अनुमान लगाने में एक तरह से कहें कि उसको वैसे नहीं एहसास कर पाते, जैसे उसी तरह से जैसे बहुत गर्मी पड़ने लगे तो लगता है कि 45 डिग्री भी ठीक ही है। तो नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो इस जगह पहुंच गया है जहां 300 प्लस तो हमें समझ में नहीं आता, लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, चुनाव कुछ चढ़ा नहीं। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अब तक की अपनी रिकॉर्ड सीटें जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड सीटों के आसपास हो सकती है, क्योंकि ऐसी करीब 8 से 10 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल रही है। 2014 में 71 प्लस 2 73 सीट्स थी उनकी, उसी के आसपास का आंकड़ा दिखता है। लेकिन हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती है, ऐसा नहीं है। 80 के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन जो अलायंस है, जो गठजोड़ है, उसको 8-9 सीटों के आगे कोई ऐसी गुंजाइश नहीं दिखती जहां वो खड़ी हो पाए। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए
380 प्लस का आंकड़ा मुझे पार करता हुआ दिख रहा है। आज की तारीख में 320 प्लस एनडीए पहुंच चुका है। All right, I will leave it at that. And if I could just add my 2 humble bits from whatever little I have gathered after speaking to people across a few states that I have traveled to, this could largely be summed up. The emotion of people is a main hoon na election, where even if they have problems, they will largely say, you know, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट लार्जली सब ठीक ठाक चल रहा है। और अगर कुछ गलत है, then we expect that in the next term, some of this could be fixed. Modi ठीक है are 3 words that you get to hear a lot when you're speaking to people, along with some grouses, some complaints, some amount of discontent as well. 4th of June, we'll all be here. Let's see who's actually proven right. Thanks very much, all gentlemen, for joining.